Hello students, good morning. કેમ છો બધા? How are you all? Fine? Okay, I hope you all are fine. So let's start our today's lecture. So, in our last lecture, we completed our some examples and some sums which is dependent on our domain and range. Okay, today I am going to teach you about some important definitions of functions and their graphs. So let's start. The first one is some functions and their graphs. The first function is identity function. So let's see what is the identity function and how we draw their graph. Let's see. A function f from R to R, where fx is equal to x is called an identity function. That means a function fx is equal to x. That means if you put any value in our function, that means positive value or negative value or 0. If you put any number from real number, if you take any number from real number and that number if you put in your function, okay, then you get same that number. Okay, if you put 1, then you get 1. If you put 2, then you get 2. If you put 3, then you get 3. That means आप अगर कोई भी नंबर अपने फंक्शन में पुट करेंगे, बराबर, मतलब x के जगह पे आप कोई भी फंक्शन आप रखोगे, मतलब आप यहाँ पे 1 लोगे तो f of 1 होगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. आप 2 लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा. 3 लोगे तो आपका आंसर 3 आएगा. और सिमिलरली आप कोई भी नेगेटिव नंबर आप पुट करेंगे ना तो आपको वही नेगेटिव नंबर आपको आउटपुट में मिलेगा. अगर ऐसा फंक्शन आपको दिखे तो ऐसा फंक्शन हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन. अब हम थोड़े नंबर्स में आपको उसमें पुट करके बताता हूँ. सम नंबर्स डॉट फॉर एक्स इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -3, क्योंकि मैंने -3 पुट किया, मुझे क्या मिला, -3. सिमिलरली फॉर एक्स इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू -1, f of -1 is equal to -1. Similarly, x is equal to 0, f of 0 is 0. And similarly, for positive numbers, x is equal to 1, f of 1 is equal to 1. X is equal to 2, f of 2 is equal to 2. X is equal to 3, f of -3 is equal to f of 3 is equal to 3. And up to shown. That means, if you put any number, then you get that number. Is called an identity function. हाँ, अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि fx का मतलब क्या है, इज इक्वल टू y है. मतलब ये जो -3 आंसर है वो क्या है, इनडायरेक्टली आपका y है, बराबर, ये आपका क्या है, y है. इसका मतलब हमें पेयर कैसा मिलेगा, तो x इज इक्वल टू मैंने -3 पुट किया और मुझे y इज इक्वल टू क्या मिला, -3 ही मिला. ऐसे दूसरा पेयर को मुझे क्या मिलेगा, -2 -2, -1 -1, 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, और ऐसे कई सारे मुझे पेयर्स मिलेंगे. और सभी पेयर को मैं कहाँ प्लॉट कर देता हूँ, आई प्लॉट दैट ऑल पॉइंट्स ऑन our graph. Then we get this type of graph. Students, you see this type of graph we get. This is point of 1 1. Okay, intersection point of 1 1. This is 2 2. That means x is equal to and y is equal to 2. This is 3. X is equal to 3 and y is equal to 2. Similarly, x is equal to -1, y is equal to -1. X is equal to -2, y is equal to -2. X is equal to -3, y is equal to -3. And similarly, x is equal to 0, y is equal to 0. If we join all the point, okay, if we join all the point, then we get a straight line which is passing through origin. Okay, students, you can see if we join all the points, okay, okay, then we get a straight line or a line which is passing through origin. Okay, students, so this line is called fx is equal to x, and this line is called identity function. I hope you understanding graph. Okay, students. Now there is some points depending on our identity function. Let's see. The graph of identity function is line which passes through origin. Just अभी मैंने बोला कि हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है और वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. ओके. और सेकंड वन, द रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज आर, ऑब्वियसली, क्योंकि हम आर ही पुट कर रहे हैं हम और आउटपुट भी हमें आर ही मिल रहा है. मतलब आर में से हम वैल्यूज 1 by 1 पुट कर रहे हैं और आउटपुट में हमें वही मेंबर्स हमें मिल रहे हैं सेम. इन शॉर्ट में बोलूंगा
तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, कैपिटल आर ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके ओके, द रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज आर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, इसका मतलब जो भी हमें आउटपुट मिला है वो इन शॉर्ट क्या है, हमारा रेंज ही है, बराबर। और रेंज पर डिपेंड है तो हमने कई एग्जांपल्स भी देखे। ओके चलो अभी लास्ट, द आइडेंटिटी फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि आप 1 पुट करें तो आपको 1 मिल रहा है, 2 पुट करें तो आपको 2 मिल रहा है, 3 पुट करें आपको 3 मिल रहा है। सिमिलरली 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं ना तो वही आपको मिल रहा है, दूसरा वैल्यू आप पुट करें तो वो दूसरा वैल्यू मिल रहा है। इट मीन्स 1 1 1 1 1 1, बराबर। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि एक से ज्यादा वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं और आपको आंसर सेम मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, बराबर। मतलब एक का आंसर आपको एक ही मिल रहा है, दूसरे का आंसर दूसरा ही मिल रहा है, बराबर। मतलब 1 1 1 1 आपको फंक्शन ही मिल रहा है। सो द आइडेंटिटी फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन। आई होप you understand what is the definition of identity function. This is your main function, fx is equal to x is called an identity function, and this is some points which we have see for our function, and this is the graph of our function, and from the graph we may write these points. Okay students, I hope you understand. Okay, now our next definition is constant function. Let's see the what is our constant function. A function f from R to R where fx is equal to c is called constant function, where c is a constant. That means if we have some this type of function, then we say that the given function is a constant function. That means if you put any number, suppose I take c is equal to 2, suppose I take the constant value c is equal to 2, then the function is suppose I put x is equal to 1, then we get 2. Suppose I put 2, then we get 2. Suppose I put minus 1, then we get 2. Suppose I put minus 2, then we get 2. That means if you put any number from your real number, set of real numbers, okay, then you get only one answer, and the answer is C. That means 2. Okay students, so if we have this type of function, then we say that the function is a constant function, and where c is a constant. Here some values that I take and put in our function. So let's see, for x is equal to minus 3, f of minus 3 is equal to c. Similarly minus 2, x is equal to minus 2, f of minus 2, c. X is equal to minus 1, f of minus 1, c. X is equal to 0, f of 0, c. X is equal to 1, f of 1, c. And x is equal to 2 and x is equal to 3, we get the value is c. That means a constant value. Suppose I take c is equal to 2, that means the all answer is only 2. Okay students, only 2. I hope you understand. So what is the constant function? Here I take c is equal to 2 and I draw the graph. Let's see the how type of graph we have. This is x-axis and this is y-axis. This is all the member of x and this is all the member of y. So our pairing, I take c is equal to 2. That means we get how type of pairs? Minus 3 comma 2, minus 2 comma 2, minus 1 comma 2, 0 comma 2, 1 comma 2, 2 comma 2, 3 comma 2. That means this type of pair we get. And if we all the pairs plot on our graph, then the graph is like this type. Okay, then we get the graph is like this type of. So the now we plot all the points on graph. This point is 0 comma 2, this 1 comma 2, 2 comma 2, 3 comma 2, and this is minus 1 comma 2, minus 2 comma 2, minus 3 comma 2. And if we join all the points, then we get this type of line. Okay, this type of line, and this line is called fx is equal to c, and the value of c is 2, which is I mention in bracket. Okay students, I hope you understand the graph. If you take values, the value of c is 3, then your graph is like this. That means which is passing through 3. Okay, and if you get c is equal to 4, that means passing through 4. Similarly, if you get a negative number, then your graph is passing through minus 1, which is lower half plane of x-axis. And similarly,
if you take c is equal to -2 and c is equal to -3, okay, which is depending on the value, which is depending on the value of c. Okay students, so I hope you understand. And from the graph we have some points, we get some points which have, first point, the graph of constant function is a line parallel to x axis. That's it. हमें जो ग्राफ मिला अभी, बराबर, वो क्या मिला, तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, और वो क्या क्या है, तो एक्स अक्ष से पैरेलल है। ये एक्स अक्ष है और ये हमारा लाइन है, देखो दोनों पैरेलल है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, इफ सी ग्रेटर देन 0, अगर सी अभी जो मैंने क्या बोला, सी की वैल्यू मैंने 2 लिया, ओके, मैंने जो द वैल्यू ऑफ सी आई सिलेक्ट 2, दैट मीन्स अ पॉजिटिव number which is greater than 0, then a line is in upper half plane of x axis. Obviously students, you can see that ये x axis है और ये upper half plane है और ये lower half plane है। इसका मतलब आप जो c है उसकी वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो आपका जो लाइन है वो कहाँ मिलेगा, तो अपर हाफ प्लेन में मिलेगा। किसके अपर हाफ प्लेन में, तो कि एक्स एक्सिस के अपर हाफ प्लेन में। सिमिलरली अगर आप c की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो आपको जो लाइन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तो लोअर हाफ प्लेन में मिलेगा, मतलब नीचे मिलेगा, बराबर ना। अगर आप -1 लेंगे सी की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा, और 2 - लेंगे तो यहाँ पे आपको लाइन मिलेगा। और सिमिलरली इफ सी इज इक्वल टू 0, आप सी की वैल्यू 0 लेंगे, तो वो क्या होगा, लाइन इज इट सेल्फ ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब वो क्या होगा, तो इट सेल्फ एक्स एक्सिस ही होगा। समझ में आ गया? क्योंकि आंसर 0 है, बराबर ना, सभी के आंसर 0 ही आएंगे, तो सभी पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे, इसका मतलब आपका इट सेल्फ एक्स एक्सिस आएगा। और द रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, रेंज ऑफ आर एफ इज इक्वल्स टू इन सिंगलटन सेट सी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपको आंसर सिर्फ वही वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू, जो हमने सी की वैल्यू सिलेक्ट की है वो। सपोज आप सी इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो सभी के सभी आंसर 2 आएंगे। कैसे मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये मेरे पास 4 मार्कर्स है, मतलब 4 वैल्यूज है मेरे पास, बराबर। ये सब वैल्यूज है, और ये सब वैल्यूज मैंने हमारे कांस्टेंट फंक्शन में पुट किया, और मुझे आंसर सिर्फ एक ही मिला, बराबर ना। सभी के आंसर मुझे एक ही मिला, सेम मिला, बराबर। विच इज अ सिंगलटन सेट, वी नो दैट इन अ सेट ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, एंड thus if a range of any function is a singleton set, then that function is called a constant function. अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो और उसका हमें रेंज फाइंड करना बोला हो, और हमने रेंज फाइंड भी किया, और उसका आंसर सपोज सिंगलटन सेट आया, बराबर। हमारे पास सपोज कोई फंक्शन है, बराबर, कोई हमारे पास कोई fx इज इक्वल टू कोई समथिंग फंक्शन है, और उसका हमें रेंज फाइंड करने को बोला है, बराबर, और हमने फाइंड किया, और उसका आंसर क्या हुआ, सिंगलटन सेट आया, बराबर। तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारा इनडायरेक्टली कांस्टेंट फंक्शन है, बराबर। और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन। अभी मैंने बोला एक से ज्यादा नंबर है, उसके आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, बराबर। सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब मोर देन वन एलिमेंट्स गिव्स अस अ वन रेंज और वन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड। Now, our next definition of function is a polynomial function, and the definition is a function f from R to R, where fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x to n is called a polynomial function. Okay, students, and if I say the given function is nth root function, okay, if I say, then there is nothing to wrong, because of here the maximum root of x is n. समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं nth रूट पॉलिनोमियल फंक्शन बोलूँगा, तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका मैक्सिमम रूट क्या है, मैक्सिमम पावर कौन सा है, तो n है, बराबर। तो n पावर पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। 9th 10th स्टैंडर्ड में तो आपने
पॉलिनोमियल फंक्शन तो आप तो देखे ही होंगे। ओके, quadratic polynomial, cubic polynomial. इसका quadratic polynomial that means the maximum power is 2. The maximum power of x is 2, and the cubic polynomial function that means the maximum power of x is 3. Similarly, fourth power polynomial function, fifth power polynomial function. Similarly, ये कौन सा है? ये हमारा nth power polynomial function है। उसका जो maximum power है वो कितना है? x is to n है। ओके, इस कॉल्ड nth root polynomial function बोलूंगा तो अभी कोई गलत बात नहीं होगी। where an is not equal to 0, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे an 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो हमारा जो वेरिएबल है, जो हमारा x है, वो भी 0 हो जाए, वो भी निकल जाएगा। और जो हमारा ai बिलोंग्स टू r है और i इज इक्वल टू 0 ऑन टू अप टू n है, इसका मतलब जो हमारा जो मल्टीपल है x के साथ जो मल्टीपल हुआ है, बराबर, जो हमारा कोएफिशिएंट हम बोल सकते हैं उसे, हमारे कोएफिशिएंट कौन कौन से है? तो a0, a1, a2 अप टू an है। तो ये सभी नंबर कौन से है? तो हमारे रियल नंबर से, बराबर। रियल नंबर में से ही कोई कोई से नंबर हो गए। और आपको पता ही होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे टाइप के होंगे। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 विच इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। fx is equal to x cube plus 2x square plus 3x plus 1 is called cubic polynomial function. Similarly, this is called a nth polynomial function. I hope you understand. Now, the next function is a rational function. The rational functions of type fx upon gx. इसका मतलब ये टाइप का आपको फंक्शन मिले, बराबर। कौन सा टाइप का? ये fx अपन gx टाइप का आपको कोई भी फंक्शन, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी आपका कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी आपका कोई फंक्शन हो, बराबर। मतलब p बाई क्यू फॉर्म में आपको कोई भी फंक्शन दिखे तो वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ x डिफाइंड इन द डोमेन। मतलब डोमेन में से हम जो डिफाइन करते हैं वो, बराबर। वेयर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होगा, बराबर ना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए, बराबर। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन। कैसा होगा रैशनल फंक्शन? तो fx अपन gx टाइप का आपका फंक्शन होगा। और जो हमारा रैशनल फंक्शन है उस पर डिपेंडेंट हमारे पास थोड़े एग्जांपल्स भी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में सपोज मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये दोनों हो गए पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हमारे 12 में भी आएगा। मॉड्यूलस फंक्शन, अ फंक्शन f from r to r where fx is equal to modulus. That means there are two pillar, बराबर। there are two thumla and the x is between in, okay, there are x between in two thumla. Okay, so modulus of x, this type of function is called, if we get this type of function, then we say that the given function is modulus function. And modulus function is modulus of x is equal to, there are two possibilities. First one is positive x and second one is negative x. Positive x when, कब हमारा पॉजिटिव x होगा? when x greater equal to 0 होगा तब, और नेगेटिव x कब? जब हमारा x less than 0 होगा तब। ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ x is equal to x और माइनस x where x greater equal to 0 होगा तब हमारा x, और x less than 0 होगा तब हमारा माइनस x इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन पर डिपेंडेंट थोड़े मैंने पॉइंट्स लिए हैं, जो वैल्यूज लिए, जो मैं मॉड्यूलस फंक्शन में पुट करूंगा और मुझे आउटपुट क्या मिलेगा और उसका हमें ग्राफ भी क्या मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू -3, f ऑफ -3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3। सिंपल आपको याद है कि स्टूडेंट्स कि मॉड्यूलस फंक्शन मतलब कि आपका जो नेगेटिव वैल्यूज है ना वो भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी ही, जीरो का आंसर जीरो ही होगा, पॉजिटिव का आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, और जो नेगेटिव वैल्यूज है उसका भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉड्यूलस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, मॉड्यूलस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, मॉड्यूलस ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, 0 इज इक्वल टू 0, और जो पॉजिटिव नंबर उसका आंसर तो एज इट इज आएंगे, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, समझ में आएंगे। और अप टू सो ऑन, इसका मतलब ऐसे तो कई सारे हमारे पास मेंबर्स है जो हम हमारे मॉड्यूलस फंक्शन में पुट करते हैं और हमें आंसर मिलता है। ओके, सो हमारा ग्राफ कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी y की आई और x की वैल्यू -3, इसका मतलब पैर हमें क्या मिलेगा? -3, -3, -2, -2, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर ये सारे पॉइंट्स हम हमारे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा।
something like this. So this is the point is 1 1, 2 2, 3 3. This is 0 0, minus 1 1, minus 2 2, minus 3 3. Okay, ये सभी x के वैल्यूज है और ये सभी y के वैल्यूज है. So from the graph we may write some points, and which are the range of modulus function is a positive real numbers including 0 also. Okay, so we saw that the in a graph there is some positive numbers we get this the range. Okay, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव नंबर है वो भी इनडायरेक्टली हमारा पॉजिटिव है. हमारा नेगेटिव नंबर हम जैसे हमारे फंक्शन में पुट करते हैं ना, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, तो पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है, देख सकते हैं आप. और एक जीरो भी आंसर हो रहा है. इसका मतलब कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिल रहा है और एक जीरो भी आपको मिल रहा है. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज अ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, मतलब जीरो भी इंक्लूड हो रहा है. दैट मीन्स आर एफ इज इक्वल टू आर प्लस यूनियन जीरो. बराबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर यूनियन जीरो, और जीरो भी उसमें इंक्लूड हो रहा है. एंड द मॉडुलस फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन, क्योंकि अभी हमने देखा है कि -3 अगर मैं दो वैल्यूज दूंगा 1 और -1, तो दोनों के आंसर सेम ही आ रहा है. बराबर, एक से ज्यादा नंबर्स के आंसर मुझे सेम मिल रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, मैनी वन फंक्शन. मोर देन वन एलिमेंट्स गिव्स अस अ सेम range or same output. That's why we call the modulus function is many one function. Okay students, I hope you understand a polynomial function also Bessel function and also modulus function. Okay students, good. Now our next definition is a sine function. That means a sine in which the importance we give importance on sign. That means plus sign, minus sign, okay, etc. A function f from R to R where fx is equal to three possibilities. First one is 1, 0 and -1. 1 when we take x is a positive number. 0 when we take x is equal to 0, and -1 when we take x is equal to negative number is called a sine function. Okay, सो आप देख सकते हैं कि आप x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर लेंगे, बराबर, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा. अगर आप लेस देन 1 लेंगे मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर -1. अगर और अगर आप 0 लेंगे तो आपका आंसर 0 ही मिलेगा. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ फंक्शन बोलेंगे. थोड़े पॉइंट्स मैं आपको पुट करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ for x is equal to -3, if I put x is equal to -3, then we get f of -3 is equal to -1, because fx is equal to -1 when we take x less than 0, the value of x less than, when we take the value of x less than 0, that means we take the value of x is a negative number. Similarly, if x is equal to -2, f of -2 is equal to -1. Similarly, x is equal to -1, f of -1 is equal to -1, and we take if x is equal to 0, then we get f of 0 is equal to 0. Second option. Okay students, now I put some positive numbers like x is equal to 1, f of 1 is equal to 1, x is equal to 2, f of 2 is equal to 1, and similarly x is equal to 3, I get f of 3 is equal to 1, and similarly up to so on, and obviously in a negative side up to so on. ये तो मैंने थोड़े पॉइंट्स आपको पुट करके बता दिए कि आपको जो आउटपुट है वो कैसा मिल सकता है. ओके, अगर आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही आंसर -1 मिलेगा. अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आपको सभी आंसर 1 मिलेंगे. सो आपका जो ग्राफ है वो कैसा दिख सकता है, ये देखिए, आपने 0 पुट किया तो आपका आंसर 0 मिला, ये 0 है, बराबर. और इसके अलावा आपको वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं दिखेगा, सिर्फ ओरिजिन के पास ही आपको एक पॉइंट दिखेगा. अभी मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो मुझे क्या मिला, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ. ये मैं -2 कर देता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. ओके, देखिए, अगर मैंने 1 पुट किया x इज इक्वल टू, तो मुझे क्या मिला, 1 मिला. फिर मैंने 2 पुट किया तो अभी मुझे 1 मिला. 3 पुट किया तो अभी मुझे 1 मिला. ऐसे ही मैं जितने भी पॉजिटिव नंबर में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर 1 ही मिलेगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, वो मैंने y एक्स को टच नहीं की, थोड़ा
थोड़ा डिस्टेंस मैंने रखा, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और वो सर्कल से मैंने लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे वाई एक्सिस के साथ वो टच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे वाई एक्सिस पर एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो कौन सी है, तो 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वही यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी 0.1 से लेके -0.1, यहाँ पे भी -0.1 से स्टार्ट होगा और वहाँ पे 0.1 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ करके ये सर्कल से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। मतलब हमारे वाई एक्सिस पर सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू है हमारी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं -1 पुट करूँगा तो मुझे -1 मिलेगा, -2 का भी -1, -3 का भी -1। Okay, I hope you understand the graph of sinum function. Or from the graph, we may write some points like the range of sinum function is RF is equal to -1, 0, 1, क्योंकि हमारे पास आउटपुट में सिर्फ 3 ही वैल्यू मिल रही है। ओके, जो आउटपुट आ रहा है, हमारा रेंज आ रहा है, उसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक तो -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। सो RF is equal to -1, 0, 1. Similarly, the sinum function is a many one function. Obviously, क्योंकि अगर आप सभी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा और वो मिलेगा 1, और अगर सिर्फ आप सभी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आपका आंसर सिर्फ एक ही मिलेगा, वो है -1। ओके, सो मोर देन वन वैल्यूज, इफ यू पुट more than one values in your function, then you get answer 1. And similarly, if you get more than one values of negative number, then you get answer only 1, that is -1. So we call a sinum function is a many one function. Okay, so this is the sinum function. I hope you understand. So students, आज हमने कई डेफिनेशन देखी है। सबसे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन देखी थी, ओके, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने देखी कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, फिर हमने देखी मॉड्यूलस फंक्शन और ये साइनम फंक्शन। ओके, सो आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम थोड़े फंक्शन है वो भी देखेंगे और थोड़े एग्जांपल से डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।